welcome again. And today we are going to start the unit number 4. You may see unit number 3, but this was a time when there is machine design 1 and machine design 2. machine design 1 and machine design 2 नाम से चीजें हुआ करती थी. Now it is only machine design. So bearing is our unit number 4. Okay. So before going to start bearing, I want to discuss the term tribology. Okay. When you are going for your higher education after BTech, suppose you are going for PhD or suppose you are going for MTech, so tribology is itself a branch, and this branch is related to the wear mechanism. तो कैसे कोई material wear हो रहा है, tear हो रहा है, that comes under the tribology. Okay, ये tribology के अंदर में आता है. ठीक है. I want to share one thing more, that when I'm going when I'm doing my MTech, my MTech, one of my MTech work is also tribology. My MTech work is based on the erosion behavior of machine. Sorry, a component, that is the composite material, and the composite material made up of soda lime borosilicate glass, that is glass micro balloon, we call it as, and the epoxy and hardener combination. So epoxy is the matrix here, and the reinforcement in the soda lime borosilicate glass, that is the glass micro balloon. When you are going to see the SEM, that is scanning electron microscopy, अगर हम लोग इसको scanning electron microscopy देखेंगे या FESM से finite electron scanning electron microscopy से, तो see it in the form of balloon. जैसे balloon होता है या फुटबॉल होता है, वैसे आपको पौधा दिखता है. नेकेड आइट से पौधा दिखेगा, लेकिन जब हम SEM से देखेंगे scanning electron microscopy से, so वो हम लोग balloon दिखाई देगा. So my MTech work is to find out the erosion behavior of that composite, and we did the erosion test on it. So erosion test also come under tribology. So as you see on your screen, that there is the tribology. The tribology means it is come from the Greek word, and it means the rubbing process. Okay, and the study of this rubbing process is known as the tribology. Somehow in our BTech course also, directly or indirectly, we discuss about the wear mechanism. Wear mechanism. You may study the wear of the dog bone specimen in your universal testing machine. You are not going to study the fracture mechanism or the wear mechanism, but you may see by your mechanical eye. ठीक है. जहाँ हम लोग जब टफनेस टेस्ट करते हैं, टफनेस टेस्ट हमारे लिए स्पेसिफिक यहाँ पे क्या क्या है हमको बता देना चाहिए, हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे. तो उसमें हम नोच बनाते हैं 3 नोच 45 डिग्री पे. ठीक है. तो वो भी एक तरह से फ्रैक्चर करता है. Even in our hardener testing भी हम लोग फ्रैक्चर या wear mechanism करते हैं. So directly or indirectly हम लोग ट्राइबोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं. ठीक है. लेकिन हम लोग को प्रोसेस पता नहीं होता है. ठीक है. In our MTech project, in the erosion test, sand हम जानते हैं, sand बालू. तो sand is imparted on the specimen with some velocity, and we say velocity will be 20 meters per second, 40 meters per second variation was there, and also with some angle. ठीक है. तो वहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैसे वो wear हो रहा था. One thing more, that is a pin on disc, that is spin on disc test, that is comes also under tribology. Okay. Now you are thinking
Sir, why you are taking too much time for defining or for telling you that is what is traplogy? ठीक है, ये हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं because here the bearings will so bearings will comes under or the mechanism of the bearing comes under the traplogy behavior. Okay, why? Because when you are going, अच्छा आप लोग bearing naked eye से देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, हम एग्जांपल दे रहे हैं। साइकिल में एक छर्रा होता है, छर्रा देसी लैंग्वेज छर्रा, ठीक है, वो छर्रा आप लोग कहाँ देखो, जब साइकिल का जहाँ पे साफ होता है, जहाँ पे पिछला पहिया या अगला पहिया जहाँ पे होता है, जिसको एक्सल से जोड़ते हैं, ठीक है, तो जो सर्कुलर चीज होता है वहां जब निकालते हैं उसमें तो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल गोले होते हैं, ठीक है, जहाँ पे मूवमेंट होती है, ठीक है, वो उसको लोग छर्रा बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, और हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में उसको बियरिंग बोलते हैं, ठीक है। वो बॉल बियरिंग है, वैसे बियरिंग कई सारे होते हैं, डीप ग्रुप बियरिंग होते हैं, और बियरिंग होते हैं, मशरूम बियरिंग, बॉल बियरिंग, तो इस तरह के बियरिंग होते हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो ये बियरिंग होते हैं, लेकिन हम लोग जो नॉन है हम लोग से, वो नॉन क्या है, बॉल बियरिंग, ठीक है, जिसको हम छर्रा बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, ठीक है। तो बियरिंग आप लोग देखे होंगे, तो अब आप लोग एज्यूम कर सकते हैं कि कैसे मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता होगा, ठीक है। एक टर्म है जर्नल और वो से साफ, ठीक है, साफ या जर्नल, ठीक है। जब साफ रोटेट करेगा तो एक दूसरा पोर्शन है जिसपे साफ होता है, एक साफ है और साफ क्या चेक voice is not clearing, I think. Now maybe clear. So bearing is a stationary machine element, means when shaft is moving the bearing may not move, ठीक है, bearing मूव नहीं करेगा, शाफ्ट मूव करेगा। अगर हमारा bearing भी मूव करना स्टार्ट हो जाएगा then there will be relative motion, so उसका फिर एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो bearing को हम लोग स्टेशनरी मानते हैं, स्टेशनरी होता ही है वो, ठीक है, एंड ऑन द bearing जर्नल और द शाफ्ट विल मूव, ठीक है, और वो हम लोग को एक रिलेटिव मोशन देता है, ठीक है। ये भी रिलेटिव मोशन में बियरिंग हमारा स्टेशनरी ही है, बट शाफ्ट विल बी अ मूविंग कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट इज व्हेनेवर रिलेटिव मोशन अकर्स बिटवीन टू मशीन एलिमेंट व्हिच इज स्टेशनरी एंड सपोर्टिंग मूविंग मशीन एलिमेंट इज नोन एज बियरिंग, ठीक है। तो एक उसमें हमारा स्टेशनरी पोर्शन होगा दैट मे बी a bearing and एक रोटेटिंग पोर्शन होगा, जनरली वो रोटेटिंग पोर्शन शाफ्ट होता है या जर्नल होता है, ठीक है। whenever I am telling you journal it means some sort of shaft, ठीक है, शाफ्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो शाफ्ट जब मूव करेगा तो किसी भी एक सपोर्टिव मेंबर होगा, ठीक है, जिसको मूव करेगा, इन बिटवीन द टू सपोर्टिव मेंबर हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं, बियरिंग को डालते हैं, एंड bearing might be in a stationary position, ठीक है, वो स्टेशनरी पोजीशन पे ही होगा और रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है। तो bearing का क्या काम है, जनरली हम लोग के लिए ये एक सपोर्टिंग मेंबर काम करता है, ठीक है, सपोर्टिंग मेंबर या सपोर्टिंग मूव मेंबर काम करता है, और ये स्टेशनरी पोजीशन पे होता है, ठीक है। तो bearing अगर हमारा मूव करेगा, अगर हम लुब्रिकेंट सफिशिएंट नहीं देंगे तो क्या होगा, बियरिंग और शाफ्ट या जर्नल के बीच में मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एंड दैट मेटल टू मेटल कांटेक्ट में gives or may generate the heat, so there will be a heat generated. So why this bearing topic is so much important for including in the machine design syllabus, ठीक है। तो bearing क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रहा है वो हम लोग
यहाँ पे जान गए हैं, समझ रहे कि कॉन्टेक्ट होगा, तो उस कॉन्टेक्ट को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए हम लोग बेयरिंग डिजाइन में काम कर रहे हैं। और मतलब कॉन्टेक्ट अवॉइड क्यों करना है, क्योंकि हीट जनरेटेड होगा, हीट जनरेशन होगा तो क्या होगा, जो मशीन कंपोनेंट है वो भी हीट अप हो जाएगा, हीट अप होगा तो क्या होगा, मे बी उसके स्पेसिफिक या डायमेंशन में चेंजिंग होगी, डायमेंशन में चेंजिंग होगा तो क्या होगा, जो मशीनरी होगा एज ए होल सीज हो जाएगा। ठीक है, ये हम समझ चुके हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन द definition of bearing. So bearing is defined as a machine element whose function is to support a rotating machine element, that is shaft. Means the function, as we had already discussed, that the function of the bearing is to only support a rotating machine element, and which is called as the shaft. In the next class, maybe at 12:40, 12:40 के आसपास जो अगली क्लास होगी, सौरभ सर इज एब्सेंट देयर, तो उसमें हम लोग एक वीडियो देखेंगे जिसमें which clearly show the function of bearing in general। ठीक है, जब वो हम लोग देखेंगे तो वो मिस नहीं करेंगे। तो अभी जो समझ में नहीं आ रहा हो कुछ बच्चों को, सर ये क्या बता रहे हैं, नया टॉपिक स्टार्ट हो गया और बिना हम लोग विजुअलाइज किए कैसे कर रहे हैं, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास वीडियो नहीं है, उसको डाउनलोड करेंगे हम, तो उसके बाद आपको उसको डिस्कस करने में आसानी रहेगी, बच्चे समझ पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी पहले से। नाउ and to guide or confine its rotation while preventing its motion in the direction of the blade। ठीक है, तो ये बेयरिंग क्या करता है, जो उसका मोशन है, जो शाफ्ट का मोशन है, उसको कंफाइन करता है इन अ डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में उसको कंफाइन कर देता है, वो बेयरिंग का काम है। ठीक है, नाउ यहाँ पे आते हैं सेकंड पेज। Now you know that this net of the bearing, तो यहाँ पे अगर L/D ratio means length of the bearing upon the diameter of the bearing, if L/D ratio is less than 1, so that bearing may come under the short bearing। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव डिस्कस दैट bearing is only a supportive member। ठीक है, और क्या होता है, bearing is as whenever the L/D ratio is less than 1, then this is called as short bearing, and when L/D ratio is greater than 1, that is long bearing। What do you mean by L/D? So L is the length of the bearing। ठीक है, length of the bearing हम लोग वैसे एज्यूम जो भी किए थे बॉल बेयरिंग, लेकिन जब आप लोग देखेंगे तो जब हम लोग रोलर बेयरिंग की बात करेंगे या डीप ग्रूव बेयरिंग की बात करेंगे तो मैनी मोर बेयरिंग है, इसमें L/D रेशियो क्रूशियल हो जाएगा। बॉल बेयरिंग में जो लेंथ होगा वही डायमेंशन भी हमारा है। ठीक है, तो हम उससे बता सकते हैं कि शॉर्ट बेयरिंग है या लॉन्ग बेयरिंग है। ठीक है, ओके, सो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिए कि बेयरिंग इज स्टेशनरी मेंबर एंड ओनली सपोर्टिव मेंबर। ठीक है, और क्या है, L/D रेशियो विल बी लेस देन 1 एंड L/D रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1, देन इट कम अंडर द लॉन्ग बेयरिंग एंड इट कम अंडर द शॉर्ट बेयरिंग। ठीक है, ये हम देखें अभी। Now, some more extra point. So a bearing is said to be a good bearing. Sorry, something left. Sorry. So because of the relative motion between shaft and the bearing, you know, there will be a relative motion between the shaft and the bearing surface,
और साफ तो बेरिंग सर्फेस में रिलेटिव मोशन होगा तो आपको बोलेंगे सर बेरिंग में अगर रिलेटिव मोशन बेरिंग में मोशन होगा नहीं, वी एज्यूम दैट बेरिंग इज स्टेशनरी है, ठीक है, रुका हुआ है। एज्यूम क्या 99.9% केस में उसको रुका होना ही चाहिए, रुका हुआ होगा तभी सांप अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा, नहीं तो स्लीपिंग होगा, स्लीपिंग होगा, ठीक है। तो स्लीपिंग को अवॉइड करने के लिए फिर हम लोग अलग से देखते हैं, ठीक है। तो bearing must be a stationary portion, sorry stationary one. So because of the relative motion between the shaft and the bearing, some amount of power loss occur in overcoming the frictional resistance, ठीक है। तो कुछ पावर लॉस होगा, जनरली होता ही है, जो कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कहाँ डेवलप होगा, शाफ्ट एंड बेयरिंग शाफ्ट के बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा, उसके वजह से क्या होगा, बेयरिंग और शाफ्ट का मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा। आप नीचे लिखा हुआ है wear of the surface also occur due to the metal to metal contact, ठीक है। तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट होने के वजह से पावर लॉस होता है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि इस मेटल टू मेटल कांटेक्ट कैसे अवॉइड किया जाता है। जल्दी हम लोग थिक लेयर ऑफ लुब्रिकेंट का यूज करते हैं एंड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन। बहुत बड़ा टॉपिक था, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग अब देख रहे हैं तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बस हम लोग ये जानना है कि थिक लेयर ऑफ लुब्रिकेशन इज नोन एज हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो रहा है और उसके वजह से पावर लॉस हो रहा है, ठीक है। So as an engineer, as a design engineer, our whole focus will be on to avoid or to minimize the metal to metal contact, metal to metal contact को अवॉइड करना या मिनिमाइज करना, जो भी प्रोसेस हो उसके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, hence a bearing is said to be a good bearing which performs its given functionality. And what is given functionality? Is given functionality is to support only, ठीक है, is to support only, here it is writing also लिखा भी हुआ है, is supporting the shaft with a minimum power loss and wear. This is possible by providing lubrication between the shaft and the bearing, ठीक है। तो हम on the basis of lubricant and on the basis of lubricant we will decide or we will diversify the type of bearing also, thick layer of lubrication and thin layer of lubrication, and also the zero layer of zero film of lubrication. So उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। So a good bearing is said to be good when its work or when it do its given functionality, that is supporting the shaft and also providing the lubricant between the shaft and the by providing the lubricant between the shaft and the bearing, ठीक है। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं। बेयरिंग एक वीडियो देखेंगे तो हम लोग को और समझ में आ जाएगा, तो जिसको अभी समझ नहीं आ रहा है प्लीज वेट फॉर आवर नेक्स्ट क्लास एंड वी विल सी अ स्मॉल वीडियो, देन आफ्टर वी विल डिस्कस okay now lubricant. So why we are going to use lubricant, lubricant क्यों यूज कर रहे थे, क्यों यूज कर रहे थे, इसका आंसर ये है कि to avoid metal to metal contact. All things come under this point that avoid metal to metal contact. और metal to metal contact किसके बीच में हो रहा है, bearing एंड किसके बीच में हो रहा है, शाफ्ट के बीच में, क्योंकि शाफ्ट इस पे है, बियरिंग पे है। हाँ, जनरल बियरिंग जब बात करेंगे, जनरल बियरिंग एज ए होल, तो फिर उसके अंदर शाफ्ट होता है, ठीक है। तो वो बात की बात है, हम देखेंगे। लेकिन जब हम लोग सिर्फ बियरिंग की बात करेंगे तो बियरिंग इस पे होता है, बियरिंग के ऊपर जनरली शाफ्ट होता है जनरली, ठीक है। लेकिन ये कोई रूल नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन इंजीनियर वो कैसा करना चाह रहा है, शाफ्ट के डायमेंशन के हिसाब से कैसे क्या करेगा, ठीक है। So lubricant is known as fluid with sufficient viscosity. Fluid with sufficient viscosity is known as lubricant. Okay. One thing I want to add, we know that graphite जानते हैं आप लोग, graphite के बारे में पता होगा। Graphite is also work
रहा है, तो यू मे इनकाउंटर विद द लो वॉइस क्वालिटी, so you are due to poor network. Okay, now you may know that the graphite is also work as a lubricant in the machine, in the cutting process, मशीनिंग प्रोसेस में, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है तो हमें लुब्रिकेंट सब याद आ गया, ठीक है। ग्रेफाइट एक सॉलिड है, लेकिन सॉलिड होने के बाद वो लुब्रिकेंट एज ए लुब्रिकेंट काम आता है, इतना सिल्की होता है। ग्रेफाइट अगर नहीं देखेंगे तो पेंसिल का जो नोक जो बचपन में आप लोग खाते थे, ठीक है, पेंसिल चबा चबा के पीछे से छोटा कर दिए थे आप लोग, तो उसमें आप लोग ग्रेफाइट का टेस्ट किया होगा, तो ब्लैक ब्लैक रंग का जिससे दिखते हैं, ठीक है, वो ग्रेफाइट कहलाता है, ठीक है। तो दिस ग्रेफाइट इज आल्सो वर्क एज अ लुब्रिकेंट, ठीक है। वन मोर थिंग यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, every lubricant can act as a coolant, every lubricant can act as a coolant, but every coolant cannot act as a lubricant, every coolant cannot act as a lubricant। सभी लुब्रिकेंट कूलेंट होते हैं, लेकिन सभी कूलेंट हमारे लुब्रिकेंट नहीं होते हैं। नाउ अब इसको प्रूफ कैसे किया जाए। अब आप लोग साथ साथ में आरएससी भी पढ़ रहे हैं, तो आरएससी में भी कई सारे कूलेंट देखे होंगे, CF3, CF3, CFCl3, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, सॉलिड आइस, और क्या देखे होंगे NH3, अमोनिया भी एक्ट एज ए कूलेंट, ठीक है। तो क्या उन सबको एज ए लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते, ऑब्वियस नॉट, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज प्रूव हो गया है कि सभी कूलेंट को हम लोग लुब्रिकेंट की तरह यूज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन सभी लुब्रिकेंट को एज ए कूलेंट यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शनैलिटी। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि SAE10 तो ये ग्रेड है लुब्रिकेंट का, जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें लुब्रिकेंट के ग्रेडिंग के साथ से हम डिस्कस करेंगे। तो SAE10 जो है उसको हम लोग डाल दिए सॉरी एसी के कूलेंट के लिए या कार कूलिंग के लिए या हमारा अलग अलग जो चीजें हैं उसके कूलेंट के लिए, ऐसा नहीं है। जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड है, लेकिन ये स्टेटमेंट छोटा सा है कि एवरी लुब्रिकेंट कैन एक्ट एज ए कूलेंट, क्योंकि सभी लुब्रिकेंट एक कूलेंट का भी काम करता है, क्योंकि ये करता है, ये नेसेसरी है कि सभी जो कूलेंट है वो लुब्रिकेंट का काम नहीं करता है। हम लोग अमोनिया लेके आ जाए और इन बिटवीन डाल दें वो लुब्रिकेंट का काम करेगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ ए बीयरिंग, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इज इटसेल्फ टू सपोर्ट अ शाफ्ट और एन एक्सल एंड टू होल्ड देम इन करेक्ट पोजीशन। सो पहला फंक्शन हमारा यही हो गया कि शाफ्ट को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते रहेंगे, द फंक्शन ऑफ बीयरिंग इज टू सपोर्ट ओनली, ठीक है, and to hold them in correct position. Next function is to ensure smooth or free rotating of the shaft with minimum friction, ठीक है। मिनिमम फ्रिक्शन के साथ हम लोग एक स्मूथ रोटेशन करेंगे। मिनिमम फ्रिक्शन कैसे होगा? बाय अवॉइडिंग मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट, और वो कैसे अवॉइड करेंगे? by giving sufficient lubrication, okay। और क्या है मेन फंक्शन तो वही है, लेकिन एक मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ये है टू टेक अप द लोड एक्टिंग ऑन द शाफ्ट। जो शाफ्ट पे लोड हो रहा है उसको भी बियरिंग अपने ऊपर बियर करता है, और एन एक्सल टू ट्रांसमिट देम टू द फाउंडेशन और फ्रेम ऑफ द मशीन, ठीक है। तो ये एक सपोर्टिव मेंबर है, और ये और क्या करता है? एक्सल या जो हमारा शाफ्ट है, एक्सल या अच्छा एक्सल और शाफ्ट में डिफरेंस क्या होता है ये हम जानना चाहेंगे। इस क्लास के बाद अगले क्लास में डिस्कस भी करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सल एंड शाफ्ट, ठीक है। हम जानते भी होंगे एक्सल, शाफ्ट एंड स्पिंडल, तीन चीजें है, थ्री टर्म्स, एक्सल, शाफ्ट एंड स्पिंडल। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि वो तीन चीजें है क्या, ठीक है। सो आई एम रेस्टिंग माय वॉइस हियर। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं क्या हम लोग पढ़े आज। टुडे वी आर डिस्कसिंग स्टार्टिंग द टॉपिक दैट इज बियरिंग, डिजाइन ऑफ बियरिंग मटेरियल। तो बियरिंग क्या होता है? बियरिंग इज ओनली अ सपोर्टिव मेंबर,
एक सपोर्टिव मेंबर होता है which support the shaft and where it is not necessary that only shaft एक्सल भी हो सकता है, स्पिंडल भी हो सकता है, जो भी रोटेटिंग कंपोनेंट होगा उसको सपोर्ट करेगा कौन, बियरिंग। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ शाफ्ट हो, एक्सल हो सकता है, स्पिंडल हो सकता है या एनी रोटेटिंग कंपोनेंट हो। ठीक है, उसको बियरिंग क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, इट्स कम अंडर द ट्राइबोलॉजी। ट्राइबोलॉजी क्या है, रबिंग प्रोसेस नेगेटिव हो सकता है, पूछ सकता है, और विपरीत पॉइंट ऑफ व्यू से तो रबिंग प्रोसेस का स्टडी कराता है ट्राइबोलॉजी। ठीक है, तो ये हम देखे थे, ये 3 चीज 4 चीज देखे। और मेटाबॉलिक कॉन्फ्लिक्ट कैसे अवॉइड करना है, वो बाय गिविंग द सफिशिएंट लुब्रिकेशन। So I'm holding my voice here, and in the next lecture we will see a video that will make clear the concept more, that how bearing may work. Okay, how bearing may work. So I'm going to